Assalamu alaikum students. I am Sadaf Khan from eLearn Lodhra. Today I am going to start chapter number 7. Topic is Clever Mirchu of grade 8. Clever Mirchu, as you know from this topic, this is a story about 7 children. Who is a woodcutter? There is a pre-reading question. Who is a woodcutter? A woodcutter is a person who cuts wood and sells in the market. As the topic, we know this is the story of 8 children. I am going to translate paragraph number 1. A woodcutter and his wife lived in a village. They had 7 children. All of them were boys. एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे और उनके 7 बच्चे थे और तमाम लड़के थे. The woodcutter and his wife were so poor that at times they do not know where to get money to buy food for their children. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे कि वो खुद नहीं जानते थे कि उनके पास अक्सर औक़ात उनके पास खाना खाने के लिए या खुराक ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे. The children were growing so fast that they always felt hungry. लड़के इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि उनको हमेशा भूख लगी रहती थी. Paragraph number 2. The youngest son, however, was the one who caused his parents the utmost anxiety. It is true that he did not eat much, but this was because he was so small. ताहम सबसे छोटा लड़का जो था अपने वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस था, क्योंकि ये सच था कि वो ज़्यादा नहीं खाता था, मगर इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा छोटा था. Indeed, when he was born, he was only the size of a paper, and that's why he was named Mirchu. दर हकीकत जब वो पैदा हुआ था तो उसका साइज़ बहुत ही छोटा था. एक सुर्ख मिर्च जितना, एक सब्ज़ मिर्च जितना उसका he was only the size of paper, and that's why he was named Mirchu. दर हकीकत जब वो पैदा हुआ था तो वो सिर्फ़ एक मिर्च जितना ही था, यही वजह है कि उसका नाम मिर्चू रख दिया. There is a question. Why was the youngest son called Mirchu? जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम मिर्चू क्यों रखा गया? He was called Mirchu because when he was born he was the only size of a paper. क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो उसका साइज़ एक मिर्च के बराबर था या मिर्च जितना था. Paragraph number 3. Once it happened that there was no rain for months on end. A great famine spread across the land, and the woodcutter soon had nothing to give to his family. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक बारिश ना हुई और ज़मीन पर कहत पड़ गया और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ भी ना था. All the savings were gone and there was nothing left to eat. तमाम जो उसकी जमा पूंजी थी या उसकी जो रकम थी वो तमाम ख़त्म हो गई और उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना बचा. Why there was nothing to eat? उनके पास खाने के लिए क्यों कुछ ना बचा? The great famine spread across the land because of no rain for months, so there was nothing to eat. Paragraph number 4. We can no longer feed our children, the woodcutter told his wife on one night as they sat beside the empty hearth. जब हम अपने बच्चों को मज़ीद नहीं खिला सकते, ये अल्फाज बोले लकड़हारे ने एक दिन अपनी बीवी को. जब वो हर्थ कहते हैं चूल्हे के पास, एम्प्टी हर्थ, खाली चूल्हे के पास वो बैठा था, तो उसने अपनी बीवी से कहा कि हम अपने बच्चों को मज़ीद नहीं खिला सकते. When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. जब लड़के सुबह नाश्ते के लिए उठेंगे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा. My dear, there is only one thing that we can do. We must take them into the forest and leave them there. अब हम इनके लिए एक ही, अपनी बीवी से वो शेयर करता है कि हम इनके लिए सिर्फ़ एक ही काम कर सकते हैं कि हम उनको जंगल में छोड़ आते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्हें खिलाने के लिए या हमें इनको देने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है.
Maybe some rich man finds them and takes them home. I am sure that he will take better care of them. और उम्मीद कर सकते हैं या मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अमीर आदमी आएगा और इन सब बच्चों को अपने साथ ले जाएगा और वो हमसे ज़्यादा अच्छी इनकी केयर करेगा या इनकी देखभाल करेगा. पैराग्राफ नंबर 5. द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड. शी वॉज so full of sorrow to hear this, but at last as the night wore on she agreed to her husband's plan. बेचारी बीवी जो थी, लकड़हारे की बीवी, बहुत चिल्लाई और रोई और ये सब सुनकर वो दुख से भर गई, लेकिन आखिरकार वो ऐसा करने को तैयार हो गई. जैसे ही रात हुई तो वो अपने शोहर के इस मंसूबे पर मुत्तफिक हो गई. आफ्टर ऑल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रंस डाई ऑफ हंगर, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकती थी. शी थॉट एंड थॉट बट नो अदर प्लान कम टू हर माइंड. उसने सोचा और बहुत सोचा, लेकिन कोई और मंसूबा उसके जहन में ना आया. शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रंस इंस्टेड ऑफ 7. अब वो ख्वाहिश करने लगी कि काश ऐसा होता कि उसके 7 बच्चों की बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते. They could have been feed well and brought up nicely. और अगर वो उसके 7 बच्चों की बजाय 3 बच्चे होते तो वो अच्छा खाते और उनकी परवरिश और उनकी देखभाल भी अच्छे तरीके से होती. What did the woodcutter's wife wished for? लकड़हारे की बीवी ने क्या ख्वाहिश जाहिर की थी? She wished that she had only 3 children instead of 7. उसने यही ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसके 7 बच्चों की बजाय 3 बच्चे होते. पैराग्राफ नंबर 6. As the woodcutter and his wife argued, they raised their voices. The little Mirchu heard every bit of what they said. जब लकड़हारा और उसकी बीवी रात को बहस कर रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तो उनकी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं और उनका जो सबसे छोटा बेटा था मिर्चू, उसने उनकी आवाज़ें या वो जो भी आपस में बहस कर रहे थे वो सब सुन लिया. Unlike his brothers, he was not asleep. For a long time, he lay thinking what would be the best thing to do. अपने दूसरे भाइयों की तरह वो सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था और वो काफ़ी देर तक लेटा यही सोचता रहा कि कौन सा मंसूबा या इस बात पर क्या ऐसा जो बेहतरीन मंसूबा है जो तैयार किया जाए, क्या करना चाहिए. As soon as it was twilight, he got up quickly and crept out of the cottage and off he ran to the forest. जैसे ही सुबह की जो धुंधलका हुआ या सुबह की पहली किरण निकली तो वो जल्दी से उठा और रेंगता हुआ अपनी झोंपड़ी से बाहर चला गया, जंगल की तरफ अपनी झोंपड़ी से बाहर चला गया. He filled his pockets with the small stones, white stones. Then he ran back on the house and was in bed again, all quiet and pretending to be fast asleep when his mother called him. वो बाहर जंगल की तरफ गया और उसने अपनी जो जेबें थी वो सफ़ेद छोटे छोटे पत्थरों से भर ली और खामोशी से वो दोबारा आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और इस तरह से अपनी माँ के सामने इस तरह से जाहिर करने लगा कि वो अपने बिस्तर से उठा ही नहीं है. जब उसकी माँ ने उसको उठाया तो वो गहरी नींद का बहाना करने लगा और यही जाहिर करने लगा कि वो अपने बिस्तर से उठा ही नहीं. What did Mirchu fill his pockets with? He filled his pockets with small white stones. Paragraph number 7. We are all going to the forest. His mother told the boys, you must all help your father after firewood, for there is no money left to buy any food. हम सब जंगल को जा रहे हैं. लकड़हारे की बीवी ने बच्चों को बताया, अपने लड़कों को बताया और उनको जगाया कि तुम सब भी अपने बाप के साथ जंगल में जाओ और लकड़ियाँ इकट्ठी करो, क्योंकि हमारे पास खाना ख़रीदने के लिए घर में अब कुछ नहीं है. The boys were so excited that they completely forgot about their hunger and were in no time on the way to the forest with their father leading. The forest was dark and lonesome, but the woodcutters knew every bit of it so well that before long they were right in the deepest part of the forest. अब लड़के इतने पुरजोश थे अपने फादर के साथ जाने के लिए कि वो अपनी भूख को बिल्कुल ही भूल चुके थे
और वो अपने वालिद की रहनुमाई में जल्द ही गहरे जंगल की तरफ, सुनसान, जो कि जंगल बहुत ही सुनसान और तारीक था, उसके वस्त में जल्द ही पहुंच गए। क्योंकि लकड़हारा जो था वो जंगल के कोने कोने से वाकिफ़ था, इसलिए वो जल्द ही अपने बच्चों को लेकर गहरे जंगल में पहुंच गया। What did मिर्चू's मदर टेल द बॉयज़ इन द मॉर्निंग? मिर्चू की माँ ने सुबह के वक्त लड़कों को क्या बताया? She told that they all are going to the forest. Paragraph number 8. I'll cut down the small trees, said the woodcutter, and you boys must collect all the branches and tie them into small bundles. It is going to be hard work. अब लकड़हारा अपने बच्चों से कहता है, लड़कों से कहता है कि मैं तमाम छोटे दरख्तों को काटूंगा और तुम सब इनको एक ही छोटे छोटे गट्ठों में बांधोगे और इनको गट्ठों में बांधकर इनको उठाओगे। यकीनन ये एक मुश्किल काम होगा। What did the woodcutter ask the boys to do? लकड़हारे ने अपने लड़कों को क्या करने के लिए कहा था? He asked the boys to collect all the branches and tie them into small bundle. Paragraph number 9. With that, he cut the trees with his axe and set his 7 sons to work. While the boys were gathering as many sticks as they could, the woodcutter noted his wife and the two of them just sneaked away. इसके साथ ही इसने अपने कुल्हाड़े से दरख्तों को काटा और अपने तमाम सातों बेटों को उसने काम पर लगा दिया। लकड़ियाँ जमा करने लगे सब उसके बच्चे, और इसी दौरान में जब वो काम में मसरूफ़ हो गए तो लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया और वो दोनों वहाँ से चल दिए, चुपके से वहाँ से निकल गए या चल दिए। पैराग्राफ नंबर 10. The boys felt a kind of shudder. They began to shout and call for their father, thinking that he might be playing some kind of a trick with them. अब कुछ ही देर में उन्होंने खौफ महसूस करने लगे, बच्चे कुछ ही देर में थरथराहट महसूस करने लगे, खौफ महसूस करने लगे और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और ये सोचने लगे कि शायद उनका बाप जो है वो किसी किस्म का उनके साथ मजाक कर रहा है। When, however, he did not appear for quite some time, they really felt frightened and began to cry bitterly. Then the clever Mirchu said, "Do not worry, boys, I know the way home. The way home, all we have to do is to follow the trail of white stones. Father is not going to come." कुछ ही देर इंतज़ार करने के बाद जब वो उनको मालूम हुआ कि उनका बाप अब वापस नहीं आने वाला तो वो ज़ारो कतार रोने लगे। उस वक्त चालाक मिर्चू ने अपने भाइयों को कहा, घबराओ नहीं, मैं घर का रास्ता जानता हूँ, तुम्हें मेरे साथ छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों को देखते हुए चलना होगा क्योंकि अब हमारे वालिद आने वाले नहीं। पैराग्राफ नंबर 11. मिर्चूज़ ब्रदर हावर डाउटेड व्हाट ही सेड. मिर्चू के जो तमाम भाई थे उनको ये सुनकर शक हुआ। एट दिस ही रिपीटेड व्हाट देयर फादर had said the night before and told them how he had filled his pockets with stones and dropped them one by one on the way. जब उसके भाइयों को ये सुनकर शक हुआ तो उसी वक्त मिर्चू ने अपने वो अल्फाज दोहराए जो उसकी माँ और बाप रात को एक रात पहले आपस में बातें करते हुए उन्होंने बोले। इसी असना में मिर्चू ने अपनी जेबें सफ़ेद पत्थरों से भर लीं और उन्हें यहाँ आते हुए रास्ते में एक एक करके गिराता रहा। So Mirchu led his brother through the deep forest and along the winding paths until they reached the cottage. जल्द ही मिर्चू जो है घने जंगल के बल खाते हुए रास्तों से अपने भाइयों की रहनुमाई करते हुए उन्हें लेकर आया, झोंपड़ी तक लेकर आया। Perhaps we are not going to be welcomed. यकीनन हमारा इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। मिर्चू said softly. मिर्चू ने नरमी से कहा या आहिस्तगी से कहा। Let us wait outside the cottage for a while and see if we can hear what father and mother are talking about. आहिस्ता से उसने कहा कि आओ हम कुछ देर झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करें और देखें कि हमारे अम्मी और अब्बू क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो हम सुन सकते हैं। Who led the boys
थ्रू द डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल से लड़कों को किसने रहनुमाई की, घने जंगल से या किसने रहनुमाई की थी लड़कों की। मिर्चू लेड द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट, मिर्चू ने घने जंगल से अपने भाइयों की या उन लड़कों की रहनुमाई की थी। पैराग्राफ नंबर 12, व्हेन द वुड कटर एंड हिज वाइफ अराइव्ड होम अर्ली दैट डे, जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस दिन जल्दी घर पहुँचे, दे हैड फाउंड 10 सिल्वर कॉइन्स वेटिंग फॉर देम, तो उनका 10 चांदी के सिक्के उनका इंतज़ार कर रहे थे। दिस वॉज इन पेमेंट ऑफ अ डेट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट, ये रकम जो थी वो एक कर्ज था जो कि वो काफ़ी अर्सा पहले भूल चुके थे, एक कर्ज की अदायगी थी जो वो काफ़ी अर्सा पहले भूल चुके थे। At the sight of so much money, the woodcutter's wife wept for joy, but when she remembered that she would never seen her boys again, all her joy vanished and she began to sob. What use was that money to her now, she thought. अब जब उस सिक्के 10 सिक्कों को देखकर वो खुशी से मुस्कुराने लगी, खुशी से रोने लगी, लेकिन जब उसको याद आया कि वो अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाएगी तो उसकी तमाम खुशियाँ गायब हो गईं और वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी और उसने ये सोचा कि अब ये रकम उसके किस काम की। What did the woodcutters and his wife find when they arrived home? लकड़हारा और उसकी बीवी जब घर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा या उनको क्या मिला। When the woodcutter and his wife arrived home, they found the silver coins. This was in payment of a debt that they had long forgotten about. ये उस कर्ज़ की अदायगी थी जो काफ़ी अर्सा पहले वो भूल चुके थे। पैराग्राफ नंबर 13, माई सन्स माई पोर लिटल सन्स, मेरे बेटों मेरे बेचारे नन्हे बच्चों। शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, उसने दुख भरी आवाज़ में कहा, वट वुड आई नॉट गिव टू हैव यू सेफली बैक होम। उसने दुख भरी आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हें बाहिफाजत वापस घर लाने के लिए क्या कुछ ना देती। Perhaps by now they might have been eaten by wolves, लेकिन उसने सोचा कि लेकिन शायद अब तक उन्हें भेड़ियों ने खा लिया होगा। This was the मिर्चू, this was all मिर्चू wanted to hear, ये तमाम बातें थीं जो मिर्चू सुनना चाहता था। He pushed the door open and ran to his mother. His brothers follow him too. यही वो अल्फाज थे जो मिर्चू सुनना चाहता था। ये अल्फाज सुनते ही मिर्चू ने दरवाज़े को ज़ोर से धक्का दिया और अपनी माँ की तरफ दौड़ा और उसके तमाम भाई भी उसके पीछे हो लिए। पैराग्राफ नंबर 14, डोंट क्राई मदर, अम्मी जान मत चिल्लाइए, वी आर ऑल हेयर, हम तमाम यहाँ हैं, ऑल सेफ एंड साउंड, तमाम महफूज हैं। वट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वॉज इन द वुड कटर्स कॉटेज दैट नाइट, लकड़हारे की झोंपड़ी में उस रात बहुत ही खुशी और मुसरत थी। एंड वट अ फीस्ट दे ऑल हैड एज दे सेट अराउंड द टेबल, द वुड कटर्स वाइफ एंड ऑल देयर 7 सन्स लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और उस रात उनकी झोंपड़ी में बहुत ही शानदार दावत थी और जो उन्होंने अपने मेज़ के इर्द गिर्द बैठकर दावत उड़ाई। इसके बाद लकड़हारा, उसकी बीवी और उनके सातों बेटे खुशी से रहने लगे। वट डिड मिर्चू से टू हिज मदर, मिर्चू ने अपनी अम्मी से क्या कहा। मिर्चू सेड, डोंट क्राई मदर, वी आर ऑल हेयर, ऑल सेफ एंड साउंड, हम यहाँ हैं और तमाम महफूज हैं। वेल डन लिटिल मिर्चू। Translation has been completed.